डियर ध्रुव राठी। तुक्कल साहब, ध्रुव आता है। ध्रुव राठी की रिलेटेड बात चली रही है तो बात कर लेते हैं एलवी यादव वर्सेस ध्रुव राठी के बारे में। इस वक्त सोशल मीडिया पर दो यूट्यूबर्स को लेकर खूब चर्चा हो रही है, एक ध्रुव राठी और दूसरे एलविश यादव। खबर आज यूट्यूबर ध्रुव राठी से जुड़ी हुई। ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं। Video by popular YouTuber Dhruv Rathi in 2018. और उस स्क्वाड के स्क्वाडन लीडर होते हैं ध्रुव राठी। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के मुकाम तक पहुंच चुका है? Well, hello there. Welcome back to another new video. Today we'll be talking about how Bharat, India is under threat. A black day for democracy is ahead. Well, these are not my words. These are Dhruv Rathi's. Just rearrange a little bit. I mean, if he can do it, then so can all of us have an excuse to manipulate words, right? Now, this video may as well get deleted. Not because this video is gonna be shit or whatever, but because आजकल लोग स्क्वाड लेके आ जाते हैं ऑपोजिशन को मिटाने के लिए। तो I mean, if it can happen in politics, then YouTube India isn't far away from it either. And before I begin this video, I will make myself very clear that I am not associated with any party possible, nor am I being received money from whatever parties or all parties involved like some people are these days. And neither do I have any connection with any certain ideology or even Modi that I am making a video against Dhruv for this very reason. So now a lot of you will be asking, why am I making such claims? Why am I so butthurt? And जो fans है वो तो यही बोलेंगे कि तू तो ध्रुव की ग्रोथ से जलता है, तुझे बस व्यूज चाहिए, क्लाउड चाहिए, that is why you're running after Prophet Google में उंगल मसीहा for 2069 or some shit, which think that you will, but वीडियो तो आएगी ultimately और मैं आखिरी दम तक चुप नहीं रहूंगा। What do you mean? These are literally Mr. Dhruv Rathi's words after all. And then you have YouTubers like this PG420 guy who tries to take Dhruv's side supposedly since day one, and then in podcasts like this. That is because Dhruv hides and deletes comments that criticize him. The same thing happens on his Twitter and Instagram and even Facebook. He even has a track record of sending his so-called squad to delete opposition ideology YouTubers' accounts and pages on Facebook, and even send death threats to MPs and YouTubers to delete their videos ASAP. So you are not exactly correct here. नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? हाँ, तेरी तानाशाही ना वही तो हो रहा है मेरे भाई। अब जिस तरह से ध्रुव दूसरों की चरण वंदना करते हैं और दूसरों को गाली देते हैं चरण वंदना करने के लिए, ये तो फिर वही बात हो गई कि जैसे कोई इनके पीछे पड़ा हो। तो कनेडा विच एक यूट्यूबर हुंदे सी जिन्होंने नाम दा संगतार सिंह मल्होत्रा होया, ये पंजाब दी एसएसपी होया। मैं उनसे पर्सनली बहुत ही ज्यादा हाथापाई करता हूँ और मैं इन्हें बहुत प्यार करता हूँ। कभी ब्याह होगा तो और भी अच्छी बात होगी। दोस्तों, ये जो संगतार सिंह मल्होत्रा होया, ये नू पूरा हमारे तौर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हुंदे सी। इन्हें नू पूरा पंजाब विच बदलाव कर दिया, सारी दुनिया नू दस दिया कि संगतार सिंह मल्होत्रा इन्नी वड्डी व्यक्ति आ, इन्हें रब दा बंदा आ। अब मेन मुद्दे में आने से पहले I would like to clarify that there are a lot of incidences where Dhruv Rathi has made massive oopsies which pretty much can end his career but still happen somehow, which I will explain why if you watch this video till the end, because many of you don't. So this is because there are a lot of incidences where Dhruv Rathi has been pretty much closing down on people and shutting down opposition. Well, classic politics. I have never seen that before. It hasn't happened in the history of mankind. This is because recently there have been controversies related to Dhruv Rathi being fact-checked by others and being exposed. But Dhruv being the smartest man alive, Dhruv being the Reed Richards of real life, be the Iron Man of India, has literally basically hiding his comments and pretty much asking people to delete the videos because he doesn't want to be seen wrong.
Yeah, you were expecting a better thing, right? You were expecting some classic switcheroo, Death Note-esque move in it, but it's Dhruv Rathi is stupid, so which I will explain why later on if you watch this video. पता है मैंने पहले भी बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है. Why I'm saying this is because recently Dhruv Rathi has been fact-checked again for the 69th time by Miss Carolina Goswami. If you don't know who Carolina Goswami is, basically she's a Polish woman who settled in India and got married and has kids there, and she makes content related to India and she loves India, and you can see the commitment she puts in her channel related to that. Mr. Rathi did not like it, so long story short, squad came and the result you can see it over here. Now because of that, Carolina Goswami has been getting a lot of death threats. Some of these threats are too much, which I cannot even say on video because community guidelines, because these details are very disturbing. So if you want to know what really exactly happened and what's going on between those two, I will link the videos down below, and you can also search it up on YouTube and Google and find articles related to that. Now, Dhruv Rathi versus Elvish Yadav is another topic which is very, very tedious. This topic has been going on for the past 3 years. 3 years ago, Elvish Yadav made a video on Dhruv Rathi. Dhruv Rathi responded to Elvish Yadav with very personal remarks. Elvish Yadav got offended, made a video fact-checking him, and some of the points were correct. You know how it pretty much illustrates what I mentioned about Dhruv Rathi being a literal dictator. He's suppressing other opinions and discourse in his Twitter. Ironically, this is the same guy who says that, there needs to be transparency, there needs to be the right to question and whatnot, and when others question him, he's just, you know what replies you're gonna get. So the main point where this video arises from comes with Dhruv Rathi versus Modi. Long story short, Dhruv doesn't like Modi because of dictatorial, electoral, autocratic reasons, and he has been making multiple videos and he has affirmed his political stance to be anti-Modi. Now, of course, Dhruv being Dhruv is very smart. He knows that if he calls Modi a dictator, he's gonna get views, and that's exactly what happened. Now, a lot of these other YouTubers were like, oh no, Dhruv can't just call Modi dictator, and so they just run after him. To be honest, half of them have a point, half of them just want to defend their boss, so that's the reason why they're saying it. Now, I am not going to say that, oh yeah, Dhruv is correct, Dhruv is wrong, but the main point comes here when you make multiple videos against Modi and the way he makes the videos. And there is this segment where pretty much he says that Modi is responsible for the IT cell, and IT cell से Modi पता नहीं क्या क्या भाई propaganda बेचते रहते हैं, and उसी reason से ध्रुव ने भाई उसको चक्कर देने के लिए ध्रुव ने भाई उसे WhatsApp ग्रुप बना लिया. भाई ईट का जवाब ईट से ही होता है ना, an eye for an eye. That's how reality functions. Another thing is that if Dhruv really cares about saving our country and constitution, then why the fuck does he come to India only for a few days, keep this in mind, and flex his patriotism pro max by taking pictures with Raja Ravish Kumar and go on Banerjee's podcast? Not Mamta, but Akash Banerjee. Yeah, confusion ho jata hai kabhi kabhi. I mean, I know this is a recurring point. A lot of people mention this, and, you know, me mentioning it is not going to make a difference, is it? Right? But the thing is, why does he have to sit in Germany and do his job? This job. If he really cares, then why not come to India and stay there for a long while and actually do some shit on ground level rather than exercising your ego just because you got 50 million views on Instagram and some 100 gazillion views on Twitter and whatnot, and if others don't even get 1,000, this is how you treat them. हमारे ध्रुव भैया बहुत चंड किस्म के आदमी है. Bro knows that if he says 2-3 correct things and 5 other absolutely, what the fuck brother, what's that, then he'll seem neutral and reliable. Hence,
why bro stands with one side in one place depending on who is watching him and at what time, and दूसरी जगह पे चले जाना जब लोग वही चीज इनकी पकड़ लेते हैं। थ्रेट दिए जाते हैं कि तुझे और तेरे बाप को और तेरी माँ को सबको मैं मार दूंगा। लिटरली डेथ थ्रेट दिए जाते हैं। हाथ जोड़ के बनती है मेरे पूरे हिंदू समाज से कि आज मुझे आप लोगों की जरूरत है। एक सेकंड, तो ये बंदा हिंदू समाज से ही विनती मांग रहा है क्योंकि इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वो मुझे 4 साल लग गए ये सब प्रोसेस करने में। आई मीन इस देश में भगवान और धर्म के नाम पे लोग अभी भी सिंपैथी क्यों मांगते हैं और फिर ये लोग ध्रुव राठी को गाली देते। एक मिनट, इसलिए बहुत जरूरी है लोगों को जागरूक करना इस चीज के बारे में, स्पेशली हिंदू लोगों को जागरूक करना। ये तो अलग ही चुनाव पट्टी हो रही है। मतलब ये वही लोग हैं जो कहते हैं नहीं जी विश का जवाब विश से होगा, तभी तो एल्विश के पास, तभी ये लोग एल्विश के पास तभी मैं कहूँ कि साहब भाई क्या कर रहे थे और क्यों थे पार्टी में। क्या यार तुम एक समस्या के समाधान को रोकते रहते हो भाई। वो तो विश निकाल रहा था सांप में अपना एल्विश डाल के। भाई ये दूसरी बार होना है यार, भाई दूसरी बार चौथी बार पता नहीं यार, आई लॉस्ट काउंट। एनीवेज, इसलिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, नितिन गडकरी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, पिनराई विजयन, मनोज कुमार झा, महुआ मोइत्रा, इनमें से कोई भी नेता नरेंद्र मोदी से 100 गुना बेहतर। अरे यार पहले ये लोग बोलते हैं मैं नॉट स्पॉन्सर्ड हूँ किसी पार्टी से, फिर ये इन सब लोगों के नाम बता देते हैं जिनको असल में हमें वोट देना चाहिए, और 2-3 बीजेपी के लोग डाल दो जिससे कि वीडियो अनबायस्ड लगे। और अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए कि भाई ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया, देन जस्ट लुक एट दिस। क्यों करे आपने? मत करो मेरे ऊपर विश्वास। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे ऊपर विश्वास करो। बस जो फैक्ट्स मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ उन्हें जरा गौर उन पर। अबे तो फिर क्यों बना रहे हो आप इतने सारे फेक वीडियोस? इतना रोना करने से क्या मिलेगा जब ये आदमी खुद कह रहा है कि विश्वास करना है करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। यार ये भैंसो हद हो रहा है यार कसम से। और फिर ये लोग बोलते हैं कि यार विक्रम गारतुर ये राइटिस्ट अनभक्त लोग खेलते रहते हैं और बार। अच्छा तो फिर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और द ग्रेट इंडियन ध्रुव राठी हैरासेस मालीवाल एंड गोस्वामी घोटाला कहाँ से आ रहा है? जर्मनी के कॉकरोचों से? I mean, technically that's kind of true, but still. I bet after this incident Dhruv was like, आज मूड नहीं कर रहा है तेल का मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का, आज तेल का माइसोजिनी बनेगा। I mean bro was legit like जो भी हादसा हुआ है वो गलत था and you would be right, लेकिन क्योंकि आपने अभद्र भाषा का उपयोग किया है इसीलिए आप पूरी तरह से गलत हैं। Get it? बिल्कुल नलिफाई ही कर ही दिया किसी के प्रताड़ना को। वाह राठी साहब वाह। लेकिन मैंने सोचा कि एक इंसान के बोलने से क्या ही फर्क पड़ेगा। Oh Lenny, bye Lenny. Just when everyone thought he would never reply aside from a cheap metaphorical story, क्योंकि स्पेड थोड़ी ना होता है, क्योंकि एक डिक्टेटर सिर्फ metaphorically रहता है ना ध्रुव। ठीक है यार, but jokes aside, his claims are already BS because of course ये वीडियो क्यों आती अगर मोदी एक फैसिस्ट है? बोलो ध्रुव बेटा बोलो। हाँ मेरे 10-12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, 4-5 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, लेकिन आखिर में मैं हूँ तो एक यूट्यूबर ही ना। और इसने 1:17 पे जो सरासर झूठ बोला है, भैंस की आंख। वैसे ध्रुव पाजी इन केस आपको पता ना वो तो भैंस इसे कहते हैं और ये दिखते हुए ऐसा होता है। अगर ज्यादा पॉलिटिक्स में बोलूंगा, ऐसी चीजों पर वीडियो बनाऊंगा तो बहुत सारी गालियां सुनने को मिलेंगी, लोग मेरे खिलाफ वीडियो बनाएंगे, डेथ थ्रेट्स मिलेंगे। मैंने सोचा छोड़ो ये सब, मुझे एजुकेशन वीडियोस बनाने पसंद है, वही बनाता हूँ, वही बनाने में मजा आता है और क्या इन चीजों में पढ़ना। लेकिन फिर फरवरी के महीने में दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझसे रुका नहीं गया। इससे पहले मेरे तो 12 मिलियन सब्स थे एंड मैं एजुकेशन देता था बस। मैंने थोड़ी ना किसी पार्टी की चरण वंदना करी है, मैंने थोड़ी ना मोदी और बीजेपी के विरोध कुछ किया है फरवरी 2024 से पहले। मैं तो बस एक मासूम सा अनबायस्ड यूट्यूबर हूँ, लेकिन एक्सपोज तो हो रहा हूँ। मैंने ये नहीं सोचा कि एक वीडियो से कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मुझे बस ये लगा कि मेरे दिल में जो बात है वो सच्चे दिल से लोगों तक पहुंचानी। ना मेरे भरा, मेरे भाई, मेरे आपके गोटा भाई, कोइंसिडेंस थोड़ी ना है कि आपकी वीडियोस किसी के ट्वीट्स के 1-2 दिन बाद अपलोड हो जाती है। कोइंसिडेंस थोड़ी ना है कि आप और आपके ग्रुपिज्म में शामिल होने वाले लोग सेम टाइम पे वीडियोस डालते हैं अपना एजेंडा डालने के लिए।
ऑफ कोर्स नहीं है ना, ये जनता ही है जो बायस्ड है, जो एकदम फुद्दू है कि तानाशाही ने इनको अपने वश में कर दिया हो। इसलिए मैंने वो पहला डिक्टेटरशिप वाला वीडियो बनाया, इस इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप। तो मेरे को एक बात बता, इफ यू थिंक दैट इंडिया इज बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप, देन व्हाई आरंट देयर वीडियोस इन योर चैनल टॉकिंग अबाउट was India a dictatorship or the history of dictators in India? Of course नहीं, क्योंकि परदादा और परदादी के गठबंधन से जो पुराना संबंध है आपका, नहीं तो ये वीडियोस होनी चाहिए आपके चैनल में, because the threat was pretty much there back then, especially जब हमारे पड़ोस के लगभग सारे देश डिक्टेटरशिप में फंसे हुए थे उस समय। बांग्लादेश याद है, पाकिस्तान तो आपको पता ही होगा जहाँ से आपके मौलाना भाई हैं, एटलीस्ट श्रीलंका में राजपक्षा परिवार की सरकार तो याद होगी, या तालिबान की तानाशाही, या चाइना ऑफ कोर्स, जिसपे आप एक दो वीडियोस बना के वो भी आधे फैक्ट्स दिखा के भाग जाते हो। लेकिन मोदी मैन के लिए तो उपहार में 6 से लेकर 10 वीडियोस बनेगी, वो भी 3 महीने में लगातार। लेकिन पता है क्या, इस वीडियो के बाद भी मेरा कोई इरादा नहीं था और ऐसे वीडियोस बनाने का। तेरे लक्षण देख के नहीं लगती है वीरे, जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड किसी के टूल किट पे काम करना हो, जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि कम ऑन ध्रुव बेटा और मिल करो बीजेपी को और वीडियोस बनाओ, वो भी 2014-2015 से, इसके 600 से भी ज्यादा वीडियोस में से बहुत सारे वीडियोस ऑब्वियसली किसी पार्टी के पीछे पड़ना है। और जब इनके पापा जी कांड करे तो डिक्टेटरशिप है मोदी की। अरे इनको क्या पता कि मेरे पापा ने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से तुम लोग होगे सहमत। मैंने भगत सिंह के बारे में सोचा जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। क्या ये ख्याल उनके दिमाग में आया होगा कि मेरे फांसी पर चढ़ने का नतीजा क्या होगा? क्या वो इस चीज को सोच रहे होंगे कि जब मुझे फांसी पर चढ़ाया जाएगा तो इसके बाद हमारे देश को आजादी मिल जाएगी? या सही में हमें आजादी मिलेगी? क्या मेरी कुर्बानी देने से क्या सही में अंग्रेज देश को छोड़ के चले जाएंगे? ये सब नहीं सोचा था उन्होंने। ओह माय गॉड, भगत सिंह के नाम पे ये जो मजाक बेच रहा है वो भाई, मतलब मोदी तक तो ठीक था, लेकिन हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स का क्या कसूर है? उनके इतिहास को तो कम से कम अपने मिस इन्फॉर्मेशन और डिसरिस्पेक्ट के जाल में मत बिछाओ। मतलब of course he won't think that his death would make a difference. Of course he didn't think that we would win. Of course he never hoped that we would prevail. And of course he didn't even want his sacrifice to mean anything. Of course Dhruv bhai sahi hai. Why would he even care about anyone else or his own death? ये इतना नीच कैसे हो सकता है? इसका 9/11 Indians died as well sponsored by WOW वाला कांड काफी नहीं था? नहीं है यार, this is just to make a joke, but he did say wow though. लेकिन फिर भी जो सही चीज थी उन्होंने वो करी। उनका फोकस बस सही कर्म करने पर था, अपना धर्म निभाने पर। So you were telling me that he did the right thing by getting executed and never hoping for independence, according to your very logic, just when I thought that this German race couldn't get any worse, or should I say in your language, Deutscher Abfall. Okay, I probably pronounced it wrong, but this happened. इसका नतीजा क्या होगा? मेरे एक अकेले इंसान के से ये सल्यूट ना करने से क्या हो जाएगा? हिटलर की तानाशाही खत्म हो जाएगी क्या? अकेले बंदे से ना। You just debunked your own video, my friend. Congratulations. I mean, why else are you making this video? You certainly aren't hoping and wishing and propagating a certain consequence here, especially after making multiple videos on a certain dictator for the past 10 years. Yes, you heard that right. It's truly been that long since the German cancer has persisted. I mean, by your logic, this should not be a selfless thing. So, मोदी की तानाशाही खत्म हो जाएगी। एक बंदे से सोडियम का केमिकल फॉर्मूला बता दो और तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा बेटा। कि मैं अपनी जॉब में बिजी था, मुझे इन सब चीजों की नहीं पड़ी थी, मैं बस अपने करियर पर फोकस कर रहा था, पैसे कमाने पर फोकस कर रहा था। लेकिन नहीं, अब मैं कह सकता हूँ कि बेटा मैंने तो अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दी थी, मैं आखिरी दम तक लड़ा था। क्योंकि मैं दूसरे पोटेंशियल डिक्टेटर को सत्ता में लाने की कोशिश कर रहा था। I mean, an eye for an eye. ईंट का जवाब ईंट से तो सुना ही होगा ना, समझ आ रहा है बच्चों? लेकिन मैं आखिर तक खड़ा रहा देश के लोकतंत्र की आवाज उठाने के लिए और दूसरों की आवाज दबाने के लिए। देखो ये बात तो माननी पड़ेगी, not because he's correct, because at least even history will learn a lesson after creators like you harass foreign citizens who arrive at India, who see it as the second home, who truly love India
and how you treat them and what were the consequences of it and how you never thought about the consequences of that and you certainly wouldn't, cause गीता को भी quote करना होता है गालियों और criticism से बचने के लिए, चाहे खुद ऐसे काम करो कि लोग तुम्हें गाली देने पे मजबूर हो जाए। 21 मिलियन YouTube सब्सक्राइबर्स, ऑलमोस्ट 70 मिलियन यूनिक व्यूअर्स पिछले 90 दिन में सिर्फ YouTube पर है। इसके मायने समझ रहे हो? ऑलमोस्ट 7% एलिजिबल वोटर्स को हमने सिर्फ इस एक YouTube चैनल के जरिए ही रीच आउट कर लिया। Let me get this straight. This guy compared his YouTube stats to a percentage of voters who can make a difference. Bro, half of your audience can't even vote now, and when they can, your history will already be shown. Your real history, and then who knows and who turns where. And even then, just how much of a god complex a person can have to think that their achievements on YouTube means that mission 100 crore हम सरकार गिरा सकते हैं और फिर एक गलती को दूसरी गलती से रिप्लेस कर सकते हैं। अब इस आदमी के आर्ग्यूमेंट्स का कोई सर पैर नहीं होता है, और अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ उसका कुछ सेंस नहीं है, तो let me give you a similar analogy. Doesn't matter if it's true or not, but still. Imagine, let's say, Elvis Yadav doing the same, but for his favorite party. Would that make any sense? Not defending, but think about it. If he does the same, then what will you say? That he's biased? That he's funded by dictators? That he's misusing voter rights and committing election frauds via YouTube? जब तू भी तो उसी लॉजिक से वही कर रहा है वीरे, जब तेरे जैसे लोग YouTube एल्गोरिथम की वजह से इतने सारे व्यूज और बॉट्स लेके बटोर रहे हैं अपने एजेंडा को फैलाने के लिए और YouTube के गाइडलाइंस को वायलेट करने के लिए, YouTube की माँ बहन एक करने के लिए। First harassment violation, then mass reporting, sending raids, blocking people's keywords, which, okay, I see the reason why, but certainly you don't have other creators who have an issue with your work blocked on your YouTube and Twitter. Oh my. Well, look at that. इतना सुंदर नज़ारा तो जन्नत में भी नहीं दिखता है ना ध्रुव भाई? इसके पीछे का क्या कारण है? मोदी या कुछ और, या फिर इरादे कुछ और है आपके? और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि पैसे बर्बाद करूंगा बॉट्स खरीदने में या फिर पेड कमेंट्स खरीदने में। तो जितने भी कमेंट्स आपने वीडियोस पर देखे, जितने भी लाइक्स, जितने भी व्यूज आप वीडियोस पर देख रहे हो, ये सब के सब 100% असली लोग हैं। फिर तेरे फैंस के स्पैम कमेंट्स क्यों होते हैं दूसरों के चैनल पे? ये बात सच है कि कुछ परसेंटेज व्यूअरशिप पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसी नेबरिंग कंट्री से भी है, लेकिन 90% से ज्यादा लोग जो इन वीडियोस को देख रहे थे वो इंडियंस थे, या तो इंडिया में रहने वाले या इंडिया के बाहर रहने वाले। तो उससे उनका आरूप थोड़ी ना चेंज हो जाता है मेरे भाई। व्यूज और सपोर्ट वहां से तब भी आ तो रहे हैं। नॉट सेइंग दैट ओ ही इज अ पाकिस्तानी, लेकिन फिर ऐसे मौलाना लोग अपने रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में क्यों आपके नाम का जिक्र कर रहे हैं, क्यों आपके नाम का जाप कर रहे हैं? क्या ये भी कोई बड़ी साजिश है आपकी तरफ से कुछ करने की, या फिर क्या? एक आदमी की रिसेंटली वीडियो देखी जो क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर हमारे वीडियोस देख रहा था। आपको पता है कि उसी सेम आदमी ने अपने हार्ड अर्न मनी टू वॉच अ क्रिकेट मैच वेस्ट कर दिए आपके वीडियोस देखने के लिए। मतलब हजारों गवा दिए इस बंदे ने, क्योंकि ध्रुव भाई का वीडियो देखना है, चाहे मैच भी क्यों ना मिस हो जाए, चाहे मेरे पैसे गए पानी में। किसी ने एंटी नेशनल कहा, किसी ने कहा चाइनीज फंडेड है, तो किसी ने कहा ये तो पाकिस्तानी है। जाने कितने झूठे इल्जाम लगाए गए और कितने ही वीडियोस इन लोगों ने मेरे ऊपर बनाए। अब ऐसे काम ही करोगे तो यही होगा ना। Look, I am not saying that people should go and insult him, but when you do stuff like I mentioned in the previous segments, when you sit in Germany and openly talk shit about India, then don't expect that these comments aren't gonna be a thing. In case you don't know what shepherd means as a metaphor, then well, this is what it looks like. Pretty much like the Charan Vandana you said that others did, cause your logic, man. And if you aren't a German shepherd, then किसी और के तो हो ना। That doesn't change the fact that you are one. किसी ने मुझे कुत्ता कहा, किसी ने कॉकरोच कहा, तो किसी ने बुली कहा। हाँ भाई, आपके फैन से बहुत अच्छी बुलिंग चल रही है दूसरों के ऊपर, और आपके ही पार्टी के मेंबर्स पर भी, जिसके साथ आपने
बहुत बड़ा धोखा किया है, for which you take absolutely no responsibility whatsoever, and instead you defend slapping others. You insult freedom fighters by manipulating fact and their history and hiding shit. Elvish के वीडियोस ब्लॉक करने पहुंच जाते हो, अब ये न्यू को थ्रेट्स देने पहुंच जाते हो अपने ही स्क्वाड के साथ साथ, एंड देन आप कहते हो कि बुली बोल दिया मुझे हो। ये असली डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? जब मैंने वीडियोस बनाने अपने शुरू किए थे, मैंने एक्सपेक्ट तो किया था कि बैकलैश आएगा, लेकिन इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये लोग मेरे ऊपर अटैक करेंगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओ जी, तू ऑर्गेनाइज अटैक्स कर सकता है ऑपोजिशन यूट्यूबर्स के खिलाफ। तू ऑर्गेनाइज तरीके से अपने फैन से अभद्र भाषा का प्रयोग करवा सकता है और तू उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं ले सकता है। तू उनको रोक नहीं सकता है, ऑब्वियसली तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट नहीं करेगा दैट karma will get you. That karma is, ये कैसा विक्टिम कार्ड है। बात क्या बात कही है? देखो दोस्तों, इससे पता चलता है कि कैसे आपके हेटर भी सीक्रेट एडमायरर्स हो सकते हैं। देखा कैसे मैनिपुलेशन करते हैं ध्रुव पाजी, देखा तुम लोगों को ये साइड ऑफ द स्टोरी बोलेगा कि ओ भाई दे सेड दैट आई एम करेक्ट, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि YouTube के रूल्स नहीं तोड़ता हो, कि YouTube के बाहर ऐसे गलीज और नीच किस्म के हरकतें ना करता हो। अगर मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं तो कैसे मुझे काउंटर किया जाए? ये कहते हैं कि प्लान है इसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाओ। ये ले, और आप मुझे बुली कर सकते हैं। कौन को सबसे बड़ा स्कैम बोल रहे हो? एक गूगल सर्च करोगे तुम्हें पता चल जाएगा लव जिहाद का मुद्दा क्या है। तुम बोले तुम्हें 3 ही केस मिलते हैं लव जिहाद के। ऐसे कई सारे एलिगेशन तुम पे ऑलरेडी लगे हुए हैं, पॉज करके पढ़ लेना। और ये जो तुम वीडियो में बोला ना कि ये चच्चा को पसंद करते थे, वो चच्चा को पसंद करते थे, मेरे भाई चीजों में फर्क होता है। तेरी आइडियोलॉजी मुझे पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे ऐसा पर्सन नहीं करता हूं। दोनों में फर्क है। यानी कि फेक न्यूज़ फैलाओगे, ध्रुव राठी ने फेक न्यूज़ फैलाई। Another manipulation tactic, जल्दी से कह देता हूँ कि everyone who is calling me out is spreading fake news, that I am spreading fake news, इससे cool दिखूंगा। No wonder अब ये news said you have ego issues, क्योंकि आपके मसाज ईगो को ये सब थोड़ी ना दिखता है। उल्टा आप तो लव जिहाद जैसे मुद्दों को जस्टिफाई करते हो कि भाई फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा भाई और करो शादी, जिससे कि कल ऐसे और हजारों केसेस आ जाए। ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि तबाही किसी को अपने शरीर को बेचते हैं, ये बिके हुए लोग अपने जमीन को बेचते हैं, अपनी आत्मा को बेचते हैं। एक मिनट, ये तो मैंने कहीं सुना है। आई वंडर वेयर दो। वो केवल अपना शरीर बेचते हैं, पर तुम अपना स्वाभिमान और अपना संस्कार बेच रहे हैं। Don't tell me this guy just copied Mr. PPD भाई। ये लोगों के मुद्दों की हत्या करते हैं और देश के साथ दगा करते हैं। ध्रुव भाई, आप पे जो आरोप लगते हैं ये भी तो मुद्दे हैं, क्यों हत्या कर रहे हो इनकी? ऐसा नहीं है कि ये सब देखकर मुझे कुछ हर्ट फील होता है, इन सब चीजों की आदत हो गई, लेकिन दुख जरूर होता है। Bro posts this tweet on his Twitter page and then says he isn't hurt. Bro posts videos bashing others for the past 10 years and then says he isn't hurt. Bro gets accused by people for bullying them and then he replies to them with all these videos and then he says he isn't hurt. नहीं भाई, जब आपके पापा जेल गए थे तो आपको हर्ट थोड़ी ना हो रहा था, है ना ध्रुव भाई? किसी ने मुझे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा, किसी ने रेवोल्यूशनरी कहा, इसलिए आपके इन लाखों कॉम्प्लीमेंट्स के बीच गोदी इकोसिस्टम के सभी अटैक्स फेल रहे। Fourth pillar of democracy. There is no hope for freedom of speech, even if it is against him, even if there are valid points against him, which he will never reply to. And if he will, then either it's whataboutery or it's countering a question with a question, cause that will make him look wise enough. जब तक देश स्वर्ग नहीं बन जाता तब तक सुधार का स्कोप हमेशा है, तब तक आवाज उठानी बनती है, और जब सब ठीक भी हो जाए तब भी नजर बनाए रखनी पड़ती है। यही लोकतंत्र है। पर वैसे अभी तो बहुत 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 कुछ सुधारना बचा है। जाते जाते ये कंट्रोवर्सी को भी रिजॉल्व कर देना, अगर देश को स्वर्ग बनाना है, कॉज आपने ही तो बोला है तो कर दो भाई। कोई अन्याय ना हो, किसी की आवाज को नीचे दबाया ना जाए। मेरा कमेंट और किसी और का भी कमेंट मत हटाना ध्रुव भाई, इन केस मैं बता रहा हूँ, कॉज भाई मैंने की है मेहनत, ये तो लोकतंत्र की ताकत है, राइट? विदेश को बचाने के संघर्ष में कितनी सारी वुमेन जर्नलिस्ट ने जमकर भाग लिया। पूनम अग्रवाल, मनीषा पांडे, निधि सुरेश, आरफा खानम शेरवानी, फ्रेड डिसूजा, मीना कोटवाल, सरफप्रिया सांगवान, प्रज्ञा मिश्रा, फातिमा खान, मीरा देवी, कुमकुम बिनवाल, और भी जाने कितनी सारी जर्नलिस्ट केवल मेट्रो सिटीज में ही नहीं बल्कि ऑन ग्राउंड लोकल रिपोर्टर्स भी। But where is the गोस्वामी ब्रो? गोस्वामी किधर है? फीमेल जर्नलिज्म में बस इनके ग्रुप के लोग होते हैं, सो भाई नहीं करेंगे उनके बारे में बात, even though she has contributed just as much to what you call your underrated लोकतंत्र। रवीश कुमार, आकाश बैनर्जी, अभिषेक शर्मा, अजीत अंजुम जैसे कई पत्रकारों ने संघर्ष किया सच दिखाने। अपने ग्रुप के सारे मेंबर्स को ऐड कर देंगे ये लोग, लेकिन नीतीश भाई का कोई नाम नहीं लेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल न्यूज देते हैं ना, चाहे वो कितने भी करीबी दोस्त क्यों ना हो।
ध्रुव के फैंस इतने गवार हैं कि ये हर किसी पे इल्जाम लगाने पहुंच जाते हैं कि ब्रो इज ध्रुव राठी लाइट, ब्रो इज चक्का and thinks he's better than Dhruv. Dhruv Rathi is right education, loyal lesson and all that shit. इसमें 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी इस एजुकेशन सिस्टम से निराश होकर। मैं समझ सकता हूं कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा ऐसे सिस्टम से डील करना। एक एग्जाम आपकी जिंदगी तय नहीं करता, इसलिए अपना हौसला कभी मत खोना। अब चाहे तो मेरी जिंदगी की कहानी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मैंने किसी भी ऐसे एग्जाम को टॉप नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कामयाब नहीं बन पाया जिंदगी में। पर भाई मेरी नौकरी कैसे आएगी, मेरा कोर्स ज्वाइन कर। अरे यार इसकी पैंतीस। ध्रुव ऐसा आदमी है जो किसी पार्टी से दुश्मनी जरूर करेगा, लेकिन अगर न्यूट्रलिटी और जर्नलिज्म की बात हो रही है और उसके राइवल्स कुछ एक्चुअली में अच्छा करते हैं तो मैनू नहीं पता आए बैंगन। सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे क्राइम्स की बात करें तो वहां पर भी लोगों के माइंडसेट और एटीट्यूड को बदलने की जरूरत पड़ेगी, जो कि मेन रूट कॉज है। कुछ लोगों का माइंडसेट जो एक औरत को इंफीरियर सब ह्यूमन मानता है, औरत को ऑब्जेक्ट की तरह देखता है। इसकी बात मैंने कई वीडियोस में करी है, जैसे कि एनिमल वाला वीडियो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ऐसा जैसे फिल्में या हनी सिंह और बादशाह टाइप के गंदे गानों पर बैन लगा दूंगा, क्योंकि मेरा मानना है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। Bro, your video literally suggests that, and see the irony. This guy isn't gonna ban them because freedom of expression है भाई, लेकिन उस वीडियो में आपने तो कुछ और बोला था, और आप ये कैसे बोल सकते हो जब also freedom of expression आपके ट्विटर और इंस्टाग्राम में ही मिलती है। बाकी ये पूरी वीडियो आयरनी के लक्षण जितने वास्ते कि भाई संविधान की इज्जत करते हैं, भाई संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को संभालेंगे, ये वो। और मुझे पता है कि हमारे ध्रुव भैया कितना इज्जत करते हैं, तभी तो लोगों को इनकी डेमोक्रेसी इन चैनल से दिक्कत है। और हाँ, ये तो सिर्फ इसकी एक वीडियो से पॉइंट्स हैं, बाकी इस पे तो फिल्म बन सकती है एज एल्विश यादव सेड। लेकिन अगर तुम लोगों को ऐसे और वीडियोस चाहिए, then do like this video and comment down below, even share it as much as possible, जिससे कि मुझे पता चले कि तुम लोग क्या सोचते हो एंड इस वीडियो को लोग किस नजरिए से देखते हैं और इसमें कितने गलतियों को सुधार सकता हूँ to make future videos better than ever for you all. Also subscribe करना चाहिए तो आप you can all do so. Socials are also in the description if you want more content from my side and want to connect as well. Waki, if you want to know why people were against Dhruv Rathi or just as worse, if not worse than him, then you can click this video. And if you want to know why journalism in the name of YouTube news does not work, then you can click this video. That's it. I'll see you in the next one. This is Aura Smith signing off. Peace out.